Hi, friends, welcome to English Study Point. Today, I am going to talk about Resistance to Theory by Paul de Man. So, this is not any kind of theory given by Paul de Man. Actually, this is an essay published by Paul de Man between the years 1982 to 1983. So, Resistance to Theory is an essay by Paul de Man published in the year 1982 to 1983. Paul de Man was an American literary critic as well as a theorist belonging to Yale School. Paul de Man, by publishing this essay, he is highlighting in front of us certain kinds of deformities that is already existing in a literary theory. So by highlighting those kinds of deformities that is already present in literary theory, he is making readers as well as scholars aware that use of literary theory in each and every case should be discouraged, because language used in a literary theory is full of complexities, so it may be considered as an unreliable source of information, and it is not a better option for scholars as well as readers to clear their base from this literary theory. So they should go up for other alternative, or they should look up for other alternative in order to make their base clear in literature. In literary theory, there is use of meta language. So resistance to theory means resistance to use of language about language. So here he is suggesting that there is use of meta language in literary theory. So what is this meta language? मेटा लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज, यानी मैं लैंग्वेज को ही फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी लैंग्वेज को फिर से डिस्क्राइब करना इज़ कॉल्ड एज मेटा लैंग्वेज. सो इन स्पाइट ऑफ सेइंग ही वॉज सैड, आई एम सेइंग ही फेल्ट सोरोफुल, यानी यहाँ पर मैं मेटाफोरिकल वे में अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ दूसरों के सामने. सो दैट इज़ फाई लिटरेरी थ्योरी में मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी साफ़ सुथरे शब्दों में चीज़ों को नहीं बताया जाता. जो बातें हम साफ़ सुथरे शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह सकते हैं, लिटरेरी थ्योरी में उन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि मेटाफर का यूज़ करके चीज़ों को बताने की कोशिश की जाती है, जिसे पॉल देमान यूज़ करने से डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा लिटरेरी थ्योरी में नहीं होना चाहिए. देन लैंग्वेज इज़ ऑलवेज फिगरेटिव एंड नॉट रेफरेंशियल. सो यूज़ ऑफ such kinds of word that convey a complicated meaning in spite of a straightforward meaning. So that is why there is use of फिगर्स इन लिटरेरी थ्योरी. बहुत सारे फिगर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, उन फिगर्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल कर आता है. एंड रीडर्स जब यानी कोई ऐसा रीडर होगा, फ्रेश रीडर होगा, जिसने पहली बार लिटरेरी थ्योरी को पढ़ना चालू किया होगा, तो उसे बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई इसे यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों का यूज़ किया जाना चाहिए, फिगर्स का यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें रीडर्स, हर तरीके के रीडर्स इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाए. एंड नॉट रेफरेंशियल. सो लिटरेरी थ्योरी में कभी भी रेफरेंसेस का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कहाँ से चीज़ों को उठाया गया है, कभी भी इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता. इसलिए लिटरेरी थ्योरी में ऐसी चीज़ों को मेंशन किया जाता है जो कि नॉन रेफरेंशियल होती हैं. सो देयर इज़ no use of ordinary sentences, and also literary theory contains references which are non-referential, which without any references. Then there is use of tropes. Tropes means there is use of metaphors. So many kinds of different kinds of metaphors are used, which actually won't provide any kind of sense to the readers. So use of metaphors constantly interfere between critical as well as literary texts, due to which readers may not be able to reach up to stable मीनिंग. सो ट्रॉप्स का, मेटाफर्स का, बहुत सारे मेटाफर्स, डिफरेंट मेटाफर्स का अगर यूज़ होगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो इतनी लॉजिकल नहीं लगेगी. अगर रीडर फ्रेश रीडर होगा, तो वो मतलब पढ़ के ये सोचेगा कि इनका यूज़ क्यों किया गया है,
लिटरेचर के अंदर ऐसे वर्ड्स को क्यों मेंशन किया गया है सेंटेंसेस के बीच में, तो वो लॉजिक ही नहीं समझ पाएगा। इससे क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा लॉजिक। देन डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्डली लिटरल और रेफरेंशियल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो इससे क्या होगा कि रीडर्स एक स्टेबल मीनिंग की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। देन देयर इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच अलाउज द राइटर्स टू से समथिंग एंड मीन something else. So by use of figure of speech, a writer is saying something but means something else, due to which a reader reading a writer's work cannot be sure if he is interpreting work of a reader in a correct manner or not. It creates a kind of misunderstanding in him. So इस तरीके की प्रॉब्लम्स लिटरेरी थ्योरी के अंदर फेस की जा सकती है। एंड ऑल्सो there is too much use of decorated words used in literary theory to leave a long lasting impact on other beings, and things are presented in a very stylistic manner in order to influence or persuade or convince readers. So due to these reasons, he is coming to a conclusion, means Paul de Man is coming to a conclusion that literary theory is not a reliable source because language used in it is not sufficient to make someone understand a particular concept, because language itself contains so many constraints. मीन्स इट मीन्स दैट जो लिटरेरी थ्योरी में लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसके अंदर अपने आप में ही बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे कि लिटरेरी थ्योरी की जो लैंग्वेज होती है वो मेटा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेटाफर्स का यूज़ किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, ट्रोप्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स यानी बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करते हैं एक रीडर को किसी भी चीज़ को समझने में। सो दैट इज़ वाई he is suggesting, means Paul de Man is suggesting that literary theory as a subject should not be taught to scholars. Now Paul de Man, in order to validate his point, he gives most famous example of tea or coffee in order to make readers understand that tea as well as coffee, they serves same function in front of guests. यानी अकॉर्डिंग टू हिम, पॉल de Man, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कॉफ़ी और टी। यानी टी और कॉफ़ी अगर हम गेस्ट के सामने इन दोनों को प्रेजेंट करते हैं यानी उनके सामने रखते हैं तो इन दोनों का सेम ही फंक्शन है। पॉल de Man कहते हैं कि टी और कॉफ़ी उनके लिए एज एन इक्वल फंक्शन करते हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। बट बाय गिविंग दिस एग्जाम्पल ऑफ टी और कॉफ़ी, ही इज़ मेकिंग रीडर्स अंडरस्टैंड दैट इफ़ टी और कॉफ़ी यूज्ड एज एन symbol in literary theory, it creates ambivalent and tension filled relationship. यानी अगर टी और कॉफ़ी का लिटरेरी थ्योरी में सिंबल के तौर पर अगर यूज़ किया जाएगा तो लिटरेरी थ्योरी में इन दोनों सिंबल्स को, टी और कॉफ़ी के सिंबल्स को इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा एम्बीवेलेंट लगेंगे, यानी कंफ्यूजिंग वे में सेंटेंसेस के अंदर इन सिंबल्स को इस तरीके से मेंशन किया जाएगा कि रीडर्स इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। यानी नॉर्मल चीज़ों को भी इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिटरेरी थ्योरी में चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। यानी टी और कॉफ़ी जैसे सिंबल्स को भी लिटरेरी थ्योरी के अंदर अगर एग्जांपल्स के तौर पर भी यूज़ किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में पोर्ट्रे किया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो देन विद दिस वीडियो लेक्चर एंड्स हियर। Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.